come to section 58. This is 58. ये 57 है, ये 58 है, और हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट. See, come to section 58. Alternative promise, one branch being illegal. Come on. In the case of an alternative promise, one branch of which is legal and other is illegal. One branch is legal, other branch is illegal. The illegal branch alone can be enforced. बहुत छोटी सी बात है. क्या है illustration? ये रहा illustration. A and B agree that A shall pay B 1000 rupees. A and B agree that A shall pay B 1000 rupees. For which B shall afterwards deliver to A either rice or smuggled opium. समझे आप? देखिए, ये ऑल्टरनेटिव हो गया. 1000 रुपए मुझे दोगे, या तो मैं तुम्हें चावल दे दूंगा या मैं तुम्हें ओपियम दूंगा, वो भी स्मगलिंग वाली. तो हेयर इन दिस केस देयर इज एन ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस, यानी कि either this alternative or other alternative, and in that case one branch is illegal. Delivering you opium is illegal. One branch is legal, delivering you rice is legal. If such situation is this, then the legal branch alone can be enforced. तो यानी कि जो selling delivery of rice can be enforced over this. दोबारा पढ़ लीजिए. In the case of an alternative promise, number one branch is legal and other branch is illegal. Then the legal branch alone can be enforced. अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. And now come to 59. This is 59. 59, 60 and 61. The three sections, section 59, 60 and 61 should be read together actually. चलिए पढ़ते हैं क्या है. Where a debtor owing several distinct debts to one person. Where a debtor owing several distinct debts to one person makes a payment to him. So there is a debtor A to B and there are so many loans. He has taken many loans from this. Makes a payment. अच्छी बात है, पेमेंट भी कर दी इसने. Either with express intimation or under circumstances implying that payment is to be applied to the discharge of some particular debt. If accepted, must be applied accordingly. अब समझिए क्या. This is dealing ये है क्या एक्चुअली? ये है appropriation of payments. ये जो हेडिंग में आ रहे हैं 59, 60 and 61. The three sections comes under the heading of appropriation of payments. Means what? मान लीजिए कि अरशान भाई साहब ने नूर जहां से कई सारे लोन ले रखे हैं. ठीक है, तो कभी गोवा घूमने के लिए 20,000 रुपए ले गया, कभी मुंबई में हीरो बनने के लिए कुछ पैसे उधार ले गया. तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग इसने लोन ले रखे हैं अपने. तो ही इज ए डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स टू वन पर्सन. सो वन पर्सन नूरजहां, several distinct debts. He is owing several distinct debts to one person. एक व्यक्ति को उसने अलग भिन्न लोन देने हैं. समझ में आई नहीं? नाउ अरशान भाई साहब ने एक कृपा की एंड ही मेक्स ए पेमेंट टू हिम. उसकी पेमेंट करता है. अब कैसे पेमेंट की? कि देखो तुमसे जो मैं 20,000 रुपए लेके गोवा गया था ना, ये मैं वो वाले पैसे उतार रहा हूं तुम्हारे. सही है?
तो नूरजहां ने कहा उससे पहले जो ले गए थे उसकी बात मत करो, अभी ये पेमेंट मैं तुम्हें 20,000 में वो दे रहा हूं, ये जो मैं गोवा घूमने गया था। नाउ एक्सप्रेस इंटीमेशन, विद एक्सप्रेस इंटीमेशन या implying implied under circumstances implying that payment is to be applied to the discharge of some particular debt, या फिर आप इस तरीके से दे रहे हैं कि इट कैन बी implied कि यू आर पेइंग ओनली फॉर ए पर्टिकुलर डेट, कोई एक निश्चित कर्जा उतार रहे हो आप। तो या तो आपने साफ साफ कह दिया, या तो आपने साफ साफ कहा कि मैं वो वाला कर्जा उतार रहा हूं जो मैंने तुमसे लिया था गोवा जाने के लिए, ये तो हुआ एक्सप्रेस इंटीमेशन। एक हुआ दूसरे की इंप्लाइडली आप कन्वे कर रहे हो कि आप कोई पर्टिकुलर डेट को ही चुकाना चाह रहे हो। आप सभी आउट ऑफ ए लोन, बी लोन, सी लोन, डी लोन, आउट ऑफ सेवरल लोन्स you are indicating either expressly or impliedly that you are discharging only the one of those loans, particular debt को। if accepted, अगर ये नूरजहां accept कर लेती है, then that payment must be applied accordingly, means as per your intimation, जैसे आपने इंटीमेट किया है वैसे ही इसको अप्लाई किया जाना चाहिए। This should be accepted as per the intimation. This is the 59। हाँ है ना, बताइए, बोले बात समझ में आई नहीं आई? Illustration: A owes B among other debts 1,000 rupees upon a promissory note. So he owes B among other debts means there are certain distinct debts. There are certain distinct debts and out of them he pays 1,000 rupees upon a promissory notes which falls due on 1st June. He owes B 1 जून को जो ड्यू हो रहा था, no other debt of that amount on the 1st June. A pays to B 1,000 rupees. The payment is to apply to the discharge of the promissory note. समझिए क्या बात है। कई सारे लोन ले रखे हैं और एक ले रखा था आपने प्रोमिसरी नोट कि आई प्रोमिस यू टू पे ₹1,000 ऑन 1st जून। नाउ 1st जून को आपने 1st जून को कौन सा लोन ड्यू हो रहा है आपका? 1,000 रुपए वाला। नाउ यू आर पेइंग 1,000 रुपीज, ए पेज टू बी ₹1,000 ऑन द 1st जून। जिस डेट को वो लोन ड्यू हो रहा था उसी डेट को आपने 1,000 रुपए पेमेंट की है, तो ये इंप्लाइड है इसमें कि यू आर पेइंग दैट डेट विच इज बिकमिंग ड्यू on that date. So therefore the payment is to be applied on the discharge of promissory note because of which the 1,000 rupees were due on the 1st June. 1 जून को ड्यू हो रहे थे, अब अपने 1,000 रुपए दिए तो 1,000 रुपए कौन से लोन में जाएंगे? जो 1,000 रुपए इसमें ड्यू हो रहा था उस दिन ये, तो ये इंप्लाइड हो गया। या ये कह के देता कि 1,000 रुपए प्रोमिसरी नोट में एडजस्ट कर दीजिए आप, तो वो हुआ एक्सप्रेस इंटीमेशन के द्वारा। ठीक है सब। B A owes B among other debts sum of 5, 6, 7 rupees. इतने रुपए देने थे। B writes to A and demands payment of this sum 5, 6, 7. A sends to B 5, 6, 7 rupees. This payment is to be applied to the discharge of the debt of which B had demanded payment. तो जितने तुमने पेमेंट मांगी थी उतनी पेमेंट उसने भेजी है, तो उतने पैसे आप ये नहीं कर सकते किसी और में एडजस्ट नहीं कर सकते। देखो ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, क्या होता है कि एक सिचुएशन ये हो सकती है 100 रुपए, 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, इस तरीके से लोन ले रखे हैं। नाउ दिस हैज बिकम टाइम बार्ड। टाइम बार्ड, ये भी टाइम बार्ड हो गया। अब मुझे पता है मैं अगर मैंने लोन ले रखा है कि 2 लोन तो मेरे टाइम बार्ड हो गए, अब अपोजिट पार्टी इसको एनफोर्स तो कर नहीं सकती। अब मैंने 1,000 रुपए दिए, अब 1,000 रुपए मैं क्या सोच के दे रहा हूं कि 10,000 रुपए की देनदारी है मेरे पर अभी, तो मेरे 9,000 ले जाएंगे। उसने क्या किया, 10,000 रुपए इसमें एडजस्ट कर दिए पुराने लोन में से, तब झगड़ा होता है।
तो तब ये रूल्स इफेक्टिव होते हैं कि जो 1000 रुपए की पेमेंट हुई है ये कौन से लोन के अगेंस्ट एडजस्ट की जाए, देन दीज रूल्स बिकम्स वेरी इफेक्टिव। कि नाउ यू विल हैव टू सी कि क्या कोई एक्सप्रेस इंटीमेशन थी कि मैं 1000 रुपए किस लिए दे रहा हूं, या कोई इंप्लाइड इंटीमेशन थी कि 1000 रुपीज आर बीइंग पेड फॉर अगेंस्ट विच लोन। तो इन दैट केस सेक्शन 59 सेज व्हाट, इन दैट केस सेक्शन 59 सेज दैट where a debtor owing several distinct debts to one person makes a payment to him either with express or under implied intimation, ऐसे समझ लीजिए, then the payment must be applied accordingly if accepted। I believe कि अब आपको समझ में आ चुका होगा। 59 भी 60 पर आए हैं अब, हाँ है ना। ये है नोट इंडिकेटेड सिचुएशन में, वेयर द डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट। अब डेटर ने इंटीमेट नहीं किया इस बार, एंड देयर आर नो अदर सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग टू विच डेट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड। दो बातें हो गई, ना तो एक्सप्रेसली कहा गया, ना तो एक्सप्रेसली कहा डेटर ने कि कौन से लोन के अगेंस्ट पेमेंट की जा रही है, ना ही कोई इंप्लाइडली के सर्कमस्टेंसेस हैं। इन दैट केस द क्रेडिटर में अप्लाई इट एज पर हिज डिस्क्रेशन, एट हिज डिस्क्रेशन टू एनी लॉफुल डेट, समझे, actually due and payable to him। In that case creditor may adjust that payment against any lawful debt। कैसा डेट होना चाहिए, लॉफुल हो, इट मस्ट बी लॉफुल, है ना, इट मस्ट बी ड्यू एंड पेएबल फ्रॉम द डेटर। नाउ it is important whether its recovery is or not barred by the law। भले ही इसकी रिकवरी बार्ड बाय लॉ है या नहीं है, यानी कि इफ इट इज टाइम बार्ड, इवन इफ इट इज टाइम बार्ड, देन द क्रेडिटर कैन एडजस्ट दैट अमाउंट अगेंस्ट दैट लोन। यहीं से क्वेश्चन आएगा वेदर द क्रेडिटर कैन एडजस्ट इट अगेंस्ट द टाइम बार्ड लोन और नॉट। देखिए समझ पा रहे हैं आप ये, कि अगर ये सर्कुम इंडिकेट नहीं किया जा रहा है, आपने पैसे दे दिए, बस 10,000 रुपए पकड़ा के चले गए, अब ये मेरी मर्जी है मैं कौन से लोन में इसको एडजस्ट करूं। तो नेचुरली है मैं उस लोन में एडजस्ट करूंगा जिसकी रिकवरी अब लीगली पॉसिबल नहीं है, जो टाइम बार्ड हो चुका। तो क्या टाइम बार्ड डेट के खिलाफ भी मैं एडजस्ट कर सकता हूं? आंसर इज यस, आंसर इज यस, वेदर इट्स रिकवरी इज टाइम बार्ड और नॉट, whether its recovery is or not barred by the law in force for the time being as to the limitation of suits। तो प्लीज लेट मी नो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई टाइम बार्ड डेट की। where the debtor has omitted to intimate and there are no other circumstances indicating to which debt the payment is to applied, the creditor may apply it at his discretion to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor provided its recovery is not barred by law। no, even if it is, ये लाइन गलत होगी लास्ट की, देखिए इसमें even if provided its recovery is not barred by the law। no, ये लाइन लास्ट की गलत होगी, तुम्हारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, क्या यहां पर क्या सिचुएशन है, डेटर हैज ओमिटेड टू इंटीमेट, वो नहीं कहा उसने, the debtor has omitted to intimate and there are no other circumstances indicating to which debt the payment is to be applied। यानी कि this is the case of section 60। in that case next, it is to be applied in discharge of the debt in order of time। नहीं, it is to be applied in discharge of the debt in order of time। no, ऑर्डर ऑफ टाइम का मतलब जो पहले लोन था पहले पेमेंट करेंगे। द क्रेडिटर मे अप्लाई
इट एट हिज डिस्क्रेशन, यहां तक तो ठीक है। टू एनी लॉफुल डेट, ये भी बात सही है। एक्चुअली ड्यू एंड पेबल, ये बात भी सही है। वेदर इट्स रिकवरी इज और नॉट बार्ड बाय द लिमिटेशन, ये बात भी सही है। तो आंसर इज डी। तो आई बिलीव कि अब आपको पूरा का पूरा सेक्शन 60 का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड नाउ दिस इज सेक्शन 61, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। क्या है देखिए, व्हेन नीदर पार्टी मेक्स एनी अप्रोप्रिएशन the payment shall be applied in discharge of the debts in order of time. In this case neither debtor, ना तो डेटर ने कहा कि कौन से लोन के अगेंस्ट पेमेंट है, ना ही क्रेडिटर ने स्पेसिफिकली अप्लाई किया किसी उसमें। इन दैट केस फिर वो जो लोन पैसे हैं वो कौन से लोन में एडजस्ट होंगे, दैट विल बी इन ऑर्डर ऑफ टाइम। इन ऑर्डर टाइम मतलब जो पहले लोन था उसकी पहले पेमेंट आई, पहले उसमें एडजस्ट होगा अभी। एंड वेदर दे आर और नॉट बार्ड बाय द टाइम बार्ड, वही बात है, समझे। तो जब तो सिंपल सी बात है, सेक्शन 59 ने कहा कि जैसे डेटर इंटीमेट करे वैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। 60 ने कहा, 60 ने क्या कहा, ये कहा सी डेटर ने अगर ओमिट करा और इंप्लाइड भी नहीं है, इन दैट केस डिस्क्रेशन हुआ क्रेडिटर का, वो किसी में अप्लाई करेगा। लेकिन अगर क्रेडिटर ने भी नहीं कहा 61 में, इन दैट केस ऑर्डर ऑफ टाइम। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये बात 59 डिस्क्रेशन ऑफ डेटर, 60 डिस्क्रेशन ऑफ क्रेडिटर, 61 ऑर्डर ऑफ टाइम। बेसिकली नोट्स बन सकते हैं इस तरीके से। सेक्शन 59 में जो पेमेंट एडजस्टमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है, जैसे कि डेटर ने इंटीमेट किया होगा। सेक्शन 60 में क्या है कि अगर उसने इंटीमेट ही नहीं किया तो फिर डिस्क्रेशन ऑफ क्रेडिटर हो जाएगा। अब क्रेडिटर ने भी अपना डिस्क्रेशन इस्तेमाल नहीं किया तो भैया फिर टाइम के हिसाब से पहला लोन पहले पेमेंट होगी, बस भले टाइम बार्ड हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। क्वेश्चन यहीं से आएगा टाइम बार्ड पर। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 61। इसमें कुछ और है क्या इससे ज्यादा? इसको लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए। 61, इफ द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनलिटी। बस ये भी बात सही है, बस खत्म बात। अगर बराबर के लोन है, इक्वल स्टैंडिंग के हैं, एक साथ के हैं, इक्वल स्टैंडिंग, देन इक्वल, खत्म बात। सो 59 to 61 ध्यान रखना, एक साथ पढ़ना है आप लोगों ने। आई बिलीव कि इट इज मोर देन एनफ। अब आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिए उनको। अब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की कगार पर है। मुझे लग रहा था आज मैं खत्म कर देता इसको, लेकिन 55 और 56 ने काफी टाइम ले लिया। फिर भी क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो मैंने आपको बहुत टाइम दे रहा हूं, लेकिन प्लीज मेरी इज्जत रख लेना। आप लोगों ने प्रोमिस किए मुझसे कि आप जम के मेहनत करेंगे, तो जम के पढ़ाई करना अच्छे तरीके से। देख ली क्लास आप लोगों ने। अब सच में बताना आपको क्लास सही लगी, बुरी लगी, अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। तो मुझे आपने बताना है, कैसे बताना है ये आपने देखना है। अभी आप कमेंट लीव करेंगे या आप मुझे फ़ोन करेंगे या मिलने आना चाहेंगे, क्या करेंगे? तो सबसे बेस्ट है आपका लाइक का बटन और कमेंट बॉक्स। तो ये तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि याद नहीं किया तो याद करने बैठ जाइए, क्योंकि फिर सब मेहनत हमारी हो जाएगी बेकार। दूसरी बात पहले ही कई बार समझाई है, आप लोगों को फिर समझाऊंगा कि हिंदुस्तान का सबसे आसान एग्जाम है। अगर हम कोशिश करें तो हम इसको एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए घबरा करके आउट ऑफ फियर यहाँ वहाँ स्विच करने की जरूरत नहीं है कि कभी एडवोकेसी में चले गए, कभी टीचिंग में चले गए, कभी कहीं। एक जगह मन बना करके अपनी तैयारी करेंगे तो अपना एग्जाम हो जाएगा। आपकी मदद के लिए हमने बहुत छोटे छोटे कोर्सेज डेवलप कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी फीस पर, हमारे विधि जोशल एकेडमी के ऐप पर। आप वहाँ पर जाइए, आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगी वहाँ से। आपको किसी और कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही बहुत आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है।
आप वहाँ पे जाइए, आपका काम हो जाएगा उसमें। तो लेकिन आपको डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा। देखिए जितनी कोशिश हम कर रहे हैं उससे 10 गुना आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर के रिजल्ट आएगा, लेकिन आएगा रिजल्ट पक्का। तो कर लेंगे अब। चलिए नेक्स्ट क्लास करते हैं।